اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محترم المقام ناظرین و ناظرات، درس اخلاق نمبر 4 کے ساتھ آج آپ کی خدمات عالیہ میں حاضر ہوں۔ ہماری گفتگو اور بحث کا محور دو پیرل چیزیں ہیں، دو پیرلل اوصاف سمجھ لیں۔ ایک کے ذریعے خوش اخلاقی سمجھی جائے گی، دوسرے کے ذریعے گناہوں سے دوری سمجھی جائے گی۔ یعنی عام طور پر جو اخلاق کا معنی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خوش اخلاق ہو، یعنی ایتھیکلی ویل مینرڈ ہو، موریلٹی اس کی اچھی ہو، اسمائلنگ فیس سے بات کرے، بات بات پہ لڑے نہیں، ویل مینرڈ طریقے سے اسکالرلی وے میں اپروچ کرے، بلائے تو ولا تنابزوا بالالقاب، نک نیم سے نہ پکارے جو اگلے کو برے لگتے ہوں۔ لا یسخر قوم من قوم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی اسپائنگ نہ کی جائے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کی جائے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغل خوری نہ کی جائے، ادھر کی بات ادھر نہ پہنچائی جائے۔ یہ ایک معنی سے مترشح ہوں گی صفتیں۔ دوسرا، ایسی فیکلٹی، ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ انسان گناہ سے دور ہو جائے اور ثواب کے قریب ہو جائے۔ جہد مسلسل کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدت النفس کے ذریعے، تہذیب النفس، تہذیب الاخلاق، تزکیت النفس وغیرہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف خوش اخلاقی کا عظیم ترین مظہر تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے مصداق تھے۔ دوسری طرف آپ نے تربیت فرمائی، یہ دوسرا معنی براٹ اپ، ٹریننگ، پیوریفیکیشن آف سول، پیوریفیکیشن آف انسائٹ وغیرہ کی تعبیروں سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ چوتھے درس میں ہم ایک ٹرم متعارف کراتے ہیں جو ہم نے اپنے استاد بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ آغائے مشکینی، جو صدر تھے مجتہدین آف اسلامی جمہوریہ کے، مجلس خبرگان کے صدر تھے جس زمانے میں ان کی خدمت میں شرف تلمذ کرتا تھا، اس وقت وہ مجلس خبرگان کے صدر تھے۔ یہ جو موجودہ رہبر ہیں، ان کی تعیین کی اپروول بھی ہمارے استاد بزرگوار نے دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا، انسان دارای صفات و ملکات است، ایک انسان کے اندر صفتیں ہیں، سخاوت ہے مثلا، رحم دلی ہے مثلا، اسمائلنگ فیس ہے مثلا، خوش اخلاقی ہے مثلا، اور اس میں ملکات ہے۔ اور انہوں نے فرمایا تھا کہ صفات سریع الوجود و سریع الزوال،
جو صفتیں ہوتی ہیں پیدا بھی جلدی ہو جاتی ہیں، زائل بھی جلدی ہو جاتی ہے، مگر جو ملکات ہیں بطیء الوجود و بطیء الزوال، انسان جلدی غصے میں آ بھی جاتا ہے اور غصہ چھوڑ بھی دیتا ہے، مگر ایک بندہ جو عادل ہو، وہ ظلم کی چکی میں پیس بھی دیا جائے تو ظالم نہیں بنتا، جو ظالم ہو بس لگنے تک وہ عادل نہیں بنتا، کیونکہ وہ صفت نہیں بلکہ ملکہ بن گیا ہے۔ تو ہمیں آج چوتھے درس میں یہ سیکھنا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے خوش اخلاق رہنا ہے، کیونکہ خوش اخلاقی سے گناہ جھڑیں گے، خوش اخلاقی سے یعمر البلدان، شہر آباد ہوں گے، اقوام آباد ہوں گی، صلۃ الرحم ہوگا، محبتیں بڑھیں گی، کدورتیں نفرتیں ختم ہوں گی، ریسورسز بڑھیں گے، رزق بڑھے گا، جنتی ہوں گے، بیماریاں کم ہوں گی، شفا ملے گی خوش اخلاقی سے، حسن الخلق سے۔ اور ہمیں ملکات پیدا کرنے ہیں، عدالت، کہ ہم ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی فسق و فجور کی وادی میں نہ جائیں، ہمیں صفت کے طور پر نہیں، سخاوت، جنراسٹی ملکے کے طور پہ رکھنی چاہیے کہ انسان غریب بھی ہو مگر الانفاق فی القلت، جنراسٹی نہ چھوڑے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت بلال رضوان اللہ تعالی علیہ نے اذان کہی اور اذان کہنے کے بعد حضور کو دیر لگ گئی آنے میں، حضور کے بیت الشرف پہ حاضر ہوئے اور بلال نے دروازہ نوک کیا، یا رسول اللہ اذنت، اذان ہو گئی، اذنت، اذان دے دی، سرکار آئیے، قدم الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز پڑھائیے، فرمایا آج فرادہ پڑھ لو، آج میں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمانے لگے آج میرے پاس ایک ہی پیراہن تھا جو میں نے باہر پہننے کے لیے، گھر میں تو انسان عام کپڑے پہن لیتا ہے، فقیر نے میرے دروازے پہ دستک دی تو مجھے حیا محسوس ہوئی کہ میرے دروازے سے فقیر خالی پلٹ کر نہ جائے، میں نے وہ پیراہن دے دیا جس سے نماز پڑھانی تھی، اب میرے پاس وہ لباس ہے جس سے باہر نہیں آؤں گا۔ تو کیونکہ حضور کے پاس صفت نہیں بلکہ ملکہ تھا، سخاوت کا، لہذا ملکات کچھ پیدا کریں، ہمیں اپنے وجود کے اندر کچھ ایسے ملکے پیدا کرنے ہیں جو ہمیں سخی بنائیں، بخل سے روکیں، بہادر بنائیں، بزدلی سے روکیں، ثواب کار بنائیں، معصیت کاری سے روکیں، گناہوں کی وادی سے روکیں، جو ملکہ ہمیں حج پہ لے جائے، سینما میں نہ لے جائے، مسجد میں لے جائے، فلم دکھانے نہ لے جائے، وہ ملکہ ہمیں دعائیں سکھائے، گالیاں نہ سکھائے، وہ ملکہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سکھائے، نفرت نہ سکھائے۔ تو آج یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انسان کی کچھ صفتیں ہیں، جلدی آتی ہیں جلدی چلی جاتی ہیں، کچھ ملکات ہیں، دیر سے آتے ہیں دیر سے جاتے ہیں۔ البتہ بعض اوقات انسان بلڈنگ بناتا ہے، بہت دیر لگتی ہے، پر گرانے میں بہت جلدی بھی ہو جاتی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے وسوسوں سے بچیں، شر اعداء سے بچیں،
शर हासिदीन से बचें, शर शयातीन मिनल जिन्नते व नास अजमाइन से खुद को महफूज हो मसून व मामून रखें। दरस अखलाक में हमें ये बताया जाएगा और ये बताया जाता है कि हमने अपने अंदर के बैटल फील्ड में कुछ ऐसी तब्दीलियों के एवज एनकरेजमेंट करनी है अल कुव्वतुल मलकिया की, डिस्करेजमेंट करनी है अल कुव्वतुल शाहविया, अल कुव्वतुल गज़बिया, अल कुव्वतुल वहमिया की। मैं आज इसको इजी एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं। हमारे एक वजूद इंसान में यूं समझ लीजिए एक फरिश्ता बैठा है जो हमें फरिश्ता बनाना चाहता है, एक दरिंदा बैठा है जो हमसे दरिंदगी कराना चाहता है कि हम चीर फाड़ खाएं, कम्युनिटी को उनके हुकूक पामाल कर दें, गस्ब कर लें, शब खून मार लें, डाके डाल लें, नऊज़ु बिल्लाह, कत्ल गारतगरी कर लें, वगैरह वगैरह। एक जानवर बैठा है जो ये कहता है कि बाबर बे ऐश कूश के आलम दोबारा नीस्त, खाओ पियो, कुलू वशरबू वला तुसरफू को न लाओ, इसराफ करते जाओ, खाओ पियो, तुम खाने पीने के लिए पैदा हुए हो, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। वो जानवर हमें सोए रहो। अभी हाल हाल में आप हैरान होंगे, एक जवान ने मुझे ये बता के हैरान कर दिया कि वो 48 घंटे सोया है। हैरत है मुझे, अगरचे मेरी ज़िंदगी में एक मुजाहिद ऐसा भी था जो अलमाजी सेंटर के बेसमेंट में 72 घंटे सोया था। पता नहीं वो बच कैसे गया। आजकल तो वो बहुत बड़ा एक जगह का इंचार्ज है, एक मुल्क का बड़ा इंचार्ज बन गया है, शागिर्द था मेरा। तो हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए, खुर्दन बराए जीस्तन अस्त, न जीस्तन बराए खुर्दन। खाना जिंदगी के लिए है, जिंदगी खाने के लिए नहीं है। तो आज हमारी थीम एक तो ये हुई कि वो सिफात जो सिफात रजीला हैं उनसे दूर रहें, सिफात हमीदा के करीब हो। शराफत है, दयानत है, अदालत है। कभी ये सिफत की शर्त में है, सिफत की सूरत में है, कभी ये मलका बन जाती है। मलका उस वक्त बनती है कि जब इंसान में कोई आसानी से उसको बदल न सके, उसको सिफत से फैकल्टी बना दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं अबू ज़र हर रोज कोड़े खाते हैं शाम में, मगर फैकल्टी है हुब्बे अली की, कभी भी अली की तारीफ से बाज नहीं रहते। मीसा में तम्मार सूली पे चढ़ना पसंद करते हैं मगर अली अली नहीं छोड़ते। अली अली उनकी सिर्फ आदत नहीं है, मलका भी बन गया, सिफत नहीं है, आदत सानवी नहीं है, आदत अव्वली बन गई है, सजियत बन गई है, तीनत बन गई है, नेचर बन गई है। ये फिर मलका की सूरत इख्तियार कर लेती है। आज के दर्स में ये भी ज़रूरी आपकी खिदमत आलिया में समझाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि हम बैलेंस बरकरार रख सकें। वो जो दूसरा पोर्शन है मलके वाला के गुनाह न करें, तो इसमें हमें उलमाए इल्म अखलाक ने 4 एलिमेंट्स दिए, 4 काम करें। नंबर 1 मुहासबा, मन लम युहासिब कुल्ल यौमिन फलैसा मिन्ना, हदीस शरीफ है। जो हर रोज का हिसाब नहीं करता, खैर व शर का, अमाल हसना और सय्या का,
अच्छाइयों बुराइयों का, हुकूकुल्लाह हुकूकुन्नास की बाबत, वो हम में से नहीं है। मुहासबा करें, सोने से पहले सेल्फ अकाउंटिंग कर लें, सेल्फ काउंटिंग या अकाउंटेबिलिटी। अच्छे अमाल ज्यादा हों तो खुश हो जाएं, बुरे अमाल ज्यादा हों तो नाराहत हो जाएं, क्योंकि जाहिर है डेली या वीकली आपके ज़माने के इमाम के पास आपका नामा अमाल पहुँचता है। कुल इमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। नंबर 2, मुआखज़ा। अगर कोई लग़ज़िश हो जाए तो मुआखज़ा करें अपना, खुद सेल्फ एहतिसाबी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ ब्लेमिंग, खुद को पनिशमेंट की चक्की में ले जाएं, खुद पनिशमेंट दें। मसलन खुद से मुराद नऊज़ुबिल्लाह ये नहीं कि सुसाइडिंग शुरू कर दें, खुद को मारना शुरू कर दें। वब्बखू कबलान तो वब्बखू, हासिबू कबलान तो हासबू। वो कैसे मुआखज़ा करेंगे आप कि अगर आज मुझसे नमाज तहज्जुद रह गई, नऊज़ु बिल्लाह, कल मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, रात को पेट भर के खाना नहीं खाऊंगा ताकि मैं उठ सकूं। ये है मुहासबा के बाद मुआखज़ा। तीसरी चीज है मुशारता। ये इससे मिलती जुलती है, शर्त लगा ले, इतने दिन रोजे रखूंगा शर्त के तौर पर, ताकि मशरूत यानी वो तज़कियतुन नफ्स वापस पलट आए। ए नफ्स, ए इनसाइड, अगर तूने मुझे बरंगे अख्ता किया, वादार किया, भड़काया, भाई से लड़ने के लिए, गीबत के लिए, गुनाह के लिए, गाली गलौज के लिए, र्यूमर्स के लिए, झूठ बोलने के लिए, सोशल मीडिया पे शुरफा की पगड़ियाँ उछालने के लिए, तो मैं तुझे 1 हफ्ते के लिए मुरगन ग़िज़ाएं नहीं खिलाऊंगा। मुशारता, मुहासबा, मुआखज़ा, मुशारता और मुराक़बा। अपने रकीब बन जाओ, अपने सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ खुद। अगर किसी को ये यकीन हो जाए, सीक्रेट सर्विस या FBI या RCMP या जो CID वाले होते हैं, जवासीस, स्पाइंग वाले, किसी मुल्क के किसी एजेंसी के इंसान के पीछे लग गए, उसकी गाड़ी बग हो गई है, घर बग हो गया है, फ़ोन टेप हो रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर हो रही हैं, तो आप देखना वो ऑटोमेटिकली मुत्तकी बन जाएगा, परहेजगार बन जाएगा। क्यों? उसको कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई वॉच कर रहा है, उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी शहादतें इकट्ठी की जा रही हैं। आप यूँ समझ लें कि आप खुद अल्लाह के जासूस हैं। बंदों की जासूसी तो हराम है। आपने सूरह यासीन में नहीं पढ़ा कि ये पैर और हाथ गवाही देंगे, ये आज़ाव जवारे गवाही देंगे, हाँ इसने ये किया था, जिससे आज ये इनकार कर रहा है। बंदा सोचेगा, ऐ हाथों, ऐ पाँव, ऐ ज़बान, ऐ आँख, ऐ दिलो दिमाग, हम तो हलाल हराम तुम्हें खिलाते रहे, हमें क्या पता था तुम अल्लाह के जासूस थे। तो गोया चौथे दर्स में ये पर्चा आउट हो गया। ये तमाम ऑर्गन्स ऑफ बॉडी जो आज़ाए बदन हैं, इनको अपना ना समझिए, ये गैर के हैं, ये अल्लाह के जासूस हैं। आप खुद क्यों नहीं अपना हिसाब रख लेते, मुहासबा? खुद क्यों नहीं अपना मुआखज़ा करते, कोई और क्यों करे? खुद क्यों नहीं कंडीशन रखते, कोई और क्यों आपके लिए कंडीशंस रखे? खुद क्यों नहीं सालिस बन जाते अपने और अल्लाह के दरमियान? खुद क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बन जाते? क्या आपको पता नहीं कि ये रकीब और अतीद
दो फरिश्ते हमेशा हमारे साथ साथ हैं, ये अच्छाइयाँ लिखता है, ये बुराइयाँ लिखता है। ये न सोते हैं, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जो कंप्यूटर है वो इसलिए नहीं सोता, और उसके ये जो फरिश्ते इसलिए नहीं सोते कि वो खुद नहीं सोता, उसको ऊँग नहीं आती, इनको भी नींद नहीं आती है। ज़ाहिर है वो खालिक है, ये मखलूक है, उसका अपना अंदाज़ है, इनका अपना अंदाज़ है। अल्लाह का ये निज़ाम है, आप इस निज़ाम को फेल नहीं कर सकते। आप वायरस नहीं छोड़ सकते अल्लाह के इन फरिश्तों के कंप्यूटर के अंदर। आपके कंप्यूटर्स में वायरस आएगा, आपके फ़ोन्स में वायरस आ सकता है, आपके फ़ोन्स में मेमोरी ख़त्म हो सकती है, अनलिमिटेड भी ले लें डेटा, मगर इनके डेटाज में कभी मेमोरी ख़त्म होती ही नहीं। आपके यहाँ बैक डेट्स में डेटा अगर पासवर्ड भूल जाए तो वापस नहीं आता, इनके यहाँ पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता नहीं कि खुदा देख रहा है। हज़रत इमाम खुमैनी ने फरमाया था, दुनिया महज़र खुदास्त, दर महज़र खुदा गुनाह न कुनीत। ये दुनिया महज़र खुदा है, अल्लाह का हुजूर है, सारी कायनात अलर्ट है, हाजिर है, लब्बैक कह के। सब दुनिया की इम्तिहान की क्लास में स्टूडेंट हैं, लाइन हाजिर है। लाइन हाजिर होते हो तो गुनाह न करो। अल्लाह से तो कुछ छुपा नहीं सकते हो, फरिश्तों से तो कुछ छुपा नहीं सकते हो। दुनिया की एजेंसियों से डरते हो, अल्लाह के फरिश्तों से नहीं डरते हो। मुहासबा, मुआखज़ा, मुशारता और मुराक़बा। हज़रात व ख़वातीन, ये जो दर्स अखलाक है, ये इसलिए भी हम ज़रूरी समझते हैं आपकी खिदमत आलिया में देना कि हमारे मुआशरे में डे टू डे लाइफ में मैं देख रहा हूँ गुनाह बढ़ रहा है, सवाब कम हो रहा है। बाज़ औक़ात तो हम सवाब का काम गुनाह के बादलों के साए में करते हैं। हमने एक सेशन रखा पाक निस्बत के साथ, सारे सेशन में गीबत करते रहे, तोहमतें लगाते रहे, हसद करते रहे, र्यूमर्स फैलाते रहे, झूठ बोलते रहे, अज़ियत मोमिन करते रहे, फेसबुक पे मैसेजेस भेजते रहे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेजते रहे। कितने ऐसे दोस्त अहबाब में मैंने देखा है कि वो दर्स में बैठे हैं, तकरीर में बैठे हैं, मजलिस में हैं, जुमे में हैं, जमात में हैं, निकाह में हैं, जनाजे में हैं, उनके फ़ोन चल रहे हैं। जनाजों में मैंने मरहूमीन की गीबत करते हुए सुना है साहिबान बहादुर को अमेरिका में। इसलिए दर्स अखलाक यहाँ बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आज का खुलासा ये हुआ, एक तो हमने सिफात को मलकात की सूरत देनी है ताकि वो आर्जी ना हो, टेम्परेरी ना हो, वो सेमी परमानेंट बन जाए, ताकि बड़े बड़े तहाजुम के साथ भी, बड़े बड़े सैलाबों में भी किश्ती नूह की तरह हमारा वजूद महफूज रहे। नमरूद की आग भी हमारे किरदार के उस महल को जला न सके। फिरौन के सिपाही भी हमें हमारे उस अखलाक को और तहज़ीबुन नफ्स को दरियाए नील में बहा न सके। शयातीन के वसवसे भी हमें अल्लाह और रसूल और अहले बैत से दूर न कर सके। हसद के बादशाह भी हमें भाई बहन से जुदा न कर सके। गीबतों और तोहमतों के चैंपियन भी हमारे घरों को तोड़ा न सके, टर्म्स को ख़राब न कर सके। सिफतों को फैकल्टी बनाना है और फिर ये चार काम करने हैं ताकि वो जो चार कुव्वतें हैं उनमें से एनकरेज करें कुव्वा मलकिया को। बताएंगे अगले दुरूस में क्या काम करें। मसलन कुरान पढ़ें, वो जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो बढ़ेगी। मसलन रोज़े रखें, कुव्वा गज़बिया डिस्करेज होगी, कुव्वा शाहविया डिस्करेज होगी। रातों को देर तक इबादत करें, जल्दी उठें, जल्दी सो जाएं,
इससे शैतान भागेगा। वुज़ू करें, आयतें पढ़ें, कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, मस्जिद में जाएं। अल्लाह मस्जिदों के दरवाजे खोल दे, बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दे। अल्लाह ताला रमज़ान की रौनकें बहाल कर दे। अल्लाह अपने घरों की रौनकें बहाल कर दे। कोरोना वायरस से और हर दुख तकलीफ़ से हर इंसान को महफूज रखे। बद अखलाक़ी से, बद तहज़ीबी से हम सबको महफूज हो मसून फरमाए। एक तरफ हम खुश अखलाक हों, दुनिया कहे आका का उम्मती जा रहा है, दूसरी तरफ हम इतने पाक नेक किरदार के मालिक हो जाएं कि इमाम सादिक कहे कि ऐसे बन के रहो कि लोग तुम्हें देखते हुए चलते हुए देखें तो ये कहे रहमल्लाहु जाफर इब्न मोहम्मद कैफ़ रब्बा कौमा। अल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद पे रहमत नाजिल करे, कैसी शरीफ कौम तरबियत करके गए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले दर्स तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।